تو اس کے بعد آگے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب و حسب سن لیں کہ آپ کا خاندان کیا ہے، ماں کا اور باپ کا۔ نسب کہتے ہیں باپ کے خاندان کو، اور حسب کہتے ہیں اپنے خاندان کو، اپنی جو اولاد چلتی نا اپنے بیٹے سے، اسے بولتے ہیں حسب۔ نسب و حسب یعنی کیا؟ نسب یعنی باپ کا خاندان، حسب یعنی اپنا خاندان جو بیٹے سے آگے چلتا ہے، اور سحر کہتے ہیں ماں کا خاندان یعنی نانیال۔ نسب یعنی اپنا دادیال، سحر یعنی اپنا ننیال، ماں کا خاندان جو نانی کی طرف جاتا ہو۔ پھر اپنے اولاد سے جو اپنا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اسے کہتے ہیں حسب۔ اب آپ کا نسب یہ ہے کہ آپ حسینی سید ہیں، یعنی آپ کے والد ماجد حضرت سید موسیٰ بن سید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد میں 12ویں نمبر پر ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سید جعفر بن امام نقی علیہ السلام، یعنی امام نقی علیہ السلام جن کا شمار 12 اماموں میں ہے، ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت سید جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت امام محمد نقی علیہ السلام کے والد ماجد ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، پھر ان کے والد ہیں حضرت علی رضا، پھر ان کے والد ہیں امام موسیٰ کاظم، ان کے والد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے والد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے والد ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، پھر ان کے والد ہیں شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس طرح آپ کا نسب جو ہے 20 واسطوں سے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب 20 واسطوں سے حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جا ملتا ہے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اسی طرح آپ کا جو سحر ہے، یعنی آپ کی ماں کا جو خاندان ہے، آپ کی ماں حسنی سادات میں سے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے، جن کا نام ہے حضرت بی بی ہاجرہ بنت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ یہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں۔ پیران پیر کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر انہی کی بیٹی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر دونوں کیا ہوئے؟ بھائی بہن ہوئے۔ بھائی بہن ہوئے نہیں؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ، پھر انہی کے بیٹے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دونوں بھائی بہن ہوئے۔ اب یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں ہیں۔ تو یہ ماں اور ان کے بھائی جو ہے نا بی بی ہاجرہ کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہوئے؟ ماموں جان ہوئے۔ ماموں جان ہوئے، آپ کے ماں کے بھائی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی غوث پاک۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سگے ماموں بھانجے ہیں، خاص ماموں بھانجے۔ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے۔ تو آپ کا شجرہ سحر یعنی آپ کی ماں کا خاندان جو ہے نا 14 واسطوں سے امام حسن علیہ السلام تک اور اوپر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جا ملتا ہے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اوپر، اور ان کے کا ماں کا خاندان دونوں ایک ہے۔ تو اس طرح آپ حسنی و حسینی سادات میں سے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح امام حسن کے اولاد میں سے ہیں، ان کی ماں حسینی ہے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باپ حسینی ہے اور ماں حسنی ہے۔ ہو بہو اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب اور سحر جو ہے نا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح باپ کا خاندان حسینی ہے اور ماں کا خاندان حسنی ہے، 20 واسطوں سے پہنچتا ہے، اور ماں کا خاندان 14 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ اگر مولا علی مشکل کشا تک شمار کریں
तो ये माँ का ख़ानदान 13 वास्तों तक होगा और बाप का ख़ानदान 19 वास्तों तक होगा, क्योंकि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के औलाद में से फिर वहाँ से हमें सैयदा कायनात को पकड़ना पड़ता है जब नसब और सिहर बयान करते हैं। खिलाफत का मामला आता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाया जाता है, क्योंकि सैयदा कायनात की औलाद आका अलैहिस्सलाम की औलाद है। आपने खुद फरमाया इस वास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बयान फरमाया। फिर आपकी वालिदा बीबी हाजरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा फरमाती हैं कि कुतुबुद्दीन यानी बख्तियार आपका नाम रखा गया था, आपका नाम बख्तियार था। आप फरमाते हैं बख्तियार जब मेरे शिकम में था तो उस वक्त मेरे साथ अजीब अजीब वाक़यात पेश आया करते थे। आपके वाक़यात ऐसे हैं जैसे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के वक्त जो वाक़यात पेश आए थे, ये वाक़यात और वो वाक़यात दोनों में मुनासिबत है, क्योंकि आप जो है ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ का ख़ानदान गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है नहीं, इस वास्ते आपके भी वाक़यात और औसाफ जो है ने मिलते जुलते हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर जो फितरत आती है वो माँ के ख़ानदान वालों की आती है। बच्चे के अंदर जो फितरत आती है ना वो माँ के ख़ानदान वालों की आती है। क्यों? क्योंकि ये वो वहाँ से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शुरू है। कहाँ से शुरू है? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शुरू है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, ऐ अली ये तेरे नहीं ये मेरे बेटे हैं। फरमाते इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान की लाज अल्लाह ताला ने क़यामत तक रखी हुई है। इस वास्ते जब बच्चा पैदा होता है तो आप गौर करो, ज़्यादा से ज़्यादा 99% बच्चों के अंदर फितरत जो है नहीं माँ के ख़ानदान की आती, बाप के ख़ानदान की नहीं आती, माँ के ख़ानदान की आती, क्योंकि इमाम हसन और इमाम हुसैन पूरे पूरे मुशाबिहत रखते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या तो मामू की आती या तो नाना की आती, इस तरह माँ के ख़ानदान की तरफ जाता है। तो आपके माँ के ख़ानदान में गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपके माँ के ख़ानदान में गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो इस वास्ते जो है नहीं उनके औसाफ जो है ना वो पिराने पीर से मिलते जुलते हैं। आप फरमाते हैं आपकी वालिदा जब बख्तियार मेरे शिकम में था तो अजीब अजीब वाक़यात मेरे साथ पेश आते थे। जब मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठती, नमाज पढ़ती तो उस वक्त मेरे शिकम में कसरत से जुम्बिश होती थी और अंदर से अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ सुनाई देती थी। तो माँ के पेट के अंदर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र करते थे और आपकी वालिदा माजिदा वो सुना करती थी। फिर आप फरमाती हैं जब आप तवल्लुद हुए तो कमरे के अंदर एक ऐसा नूर भर गया कि वो नूर को देखकर मैं डर गई, घबरा गई कि ये क्या चीज़ है। जब आप पैदा हुए तो एक नूर से सारा कमरा मुनव्वर हुआ और मैंने देखा तो बच्चा सजदे में था और जिक्र की आवाज़ आ रही थी, अल्लाह अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। तो आप भी जो है ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पैदा हुए थे तो सजदे में थे और रब्बी हबली उम्मती कहा करते थे। इसी तरह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी पैदा हुए तो सजदे में थे और अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही थी। और साबिर पाक अलाउद्दीन कलियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे पाक के पड़ पोतरे इन्हों भी जब पैदा हुए तो सजदे में थे और अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाज़ आ रही थी। फिर इसी तरह गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला वगैरह के कई औलिया अल्लाह के वाक़यात में आता जब पैदा हुए तो ये मादरजात औलिया अल्लाह की जो है निशानी होती। जब पैदा होते तो सबसे पहले सजदे में जाता है, ज़बान से पहला जो लफ्ज़ निकलता वो अल्लाह का निकलता, ये उनकी करामत का हिस्सा होता है, ये करामत का हिस्सा होता है। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम माँ के गोद में कलाम किए थे, कुरान जिसका गवाह है, पैदा होते ही कलाम करे थे कि मैं जो है अल्लाह की तरफ से एक निशानी हूँ। तो इस तरह वो मुजिज़े का बदल अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया को इनात फरमाया, उस मुजिज़े का बदल है। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये नूर देखा और इस तरह बच्चे का अचानक सजदे में जाना और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना, ये देखकर मैं हैरान भी हुई और डर भी गई, घबरा भी गई, हैरान भी हुई और घबरा भी गई। फिर आप फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद आपने सर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता वो नूर गायब हो गया। यूं ही वो नूर गायब हुआ, जब मैं घबराई हुई तो मेरी तस्कीन के वास्ते एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ये कह रही थी कि ऐ बीबी, ये जो तुमने देखा है ये नूर अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है और हमने इस नूर को आपके फर्जंद के कल्ब में रखा है, आपके फर्जंद के कल्ब में हमने ये नूर रखा है। तो आप फरमाते हैं कि इस तरह फिर ये आवाज़ सुनने के बाद मुझे जो है थोड़ी हिम्मत पैदा हुई। तो जब आप हमीदुद्दीन नागुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आपको पढ़ने के लिए भेजा गया, जब आप पढ़ने के काबिल हुए तो हमीदुद्दीन नागुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आपको इल्म हासिल करने के लिए जब भेजा गया, जब आप इल्म हासिल करने के वास्ते गए, जब आपने आपको लिखवाना चाहा, आप फरमाते हैं कि बेटा कुरान शरीफ की
आयत करीमा लिखो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का सिखा रहे थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखने का सिखा रहे, बोलते हैं कि बेटा बिस्मिल्लाह लिखो। जब आप बिस्मिल्लाह लिखवाए तो आपने बिस्मिल्लाह लिखने के बाद सबसे पहले जो आयत लिखी वो थी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये आयत लिख डाले। 15वें पारे की पूरी जब आयत लिख डाले तो उस्ताद हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैरान हो जाते हैं कि ये तो 15वें पारे की आयत है, क्या तू किसी से कुरान पढ़कर आया है? उसने क्या किसी से कुरान पढ़कर आया है? तो आप फरमाते नहीं, मैंने कुरान नहीं पढ़ा। जब मैं माँ के पेट में था तो मेरे माँ को भी 15 पारे याद थे, आप रोजाना तिलावत करती थी, तो मैं आपके शिकम में ही पेट में ही रहकर आपके कल्ब की तरफ तवज्जो करता था। उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत से वो 15 पारे मुझे माँ के पेट ही में याद हो गए। तो गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु को 17 पारे याद थे, 17 पारे माँ के पेट में याद थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 15 पारे माँ के पेट से याद करके आए थे। तो हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला बड़े खुश हुए। फिर वो 15 पारे के आगे आपने आपको कुरान पढ़ाया। जब पढ़ाना शुरू किया तो हाफिजा इतना जहन था, इतना ज़हीन था, इतना तेज था, सिर्फ 4 दिन में आप पूरे 15 पारे पढ़ लिए। 4 दिन में पूरे 15 पारे पढ़ लिए। और बकिया जो उलूम थे अल्लाह ताला ने आपको एक करामत इनायत अता फरमाई कि बचपन ही के आलम में आप दुनिया के जितने भी उलूम थे, शरीयत का, फिक़ह का, हदीस का, तफसीर का, तमाम के तमाम उलूम जो है ना बचपन ही में मुकम्मल कर दिए। तो आज उनकी विलादत का दिन है। अल्लाह ताला हमने जो कुछ भी सुना हमें इस पर यकीन रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हमें वकून मअस सादिकीन के तहत औलिया अल्लाह के साथ जुड़े रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। बिल आखिर इन्हीं के औलाद में से अब आखिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी औलाद को, हमारी नस्ल उस तक जो भी मौजूद होगी, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के परचम के साए में जगह नसीब अता फरमाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आज के इस विलादत के मौके पर उनका तस्करा करने का तोहफे के तौर पर अल्लाह ताला हमारी आने वाली क़यामत तक की नस्लों को इस राह पर गामजन फरमाए और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के परचम के साए में जगह नसीब अता फरमाए। मेरे बयान करने में, नाम लेने में, तारीख बयान करने में कुछ भी गलती, खामी, ऊंच नीच, कमी बेशी हुई तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।